with a charitable heart, with a feeling for somebody else, with a certain understanding and submissiveness for Islam, for Allah subhanahu wa ta'ala, the love of the Prophet, the love of the humanity, and putting these people together in an act of charity, in an act of consistent charity. I mean, Allah subhanahu wa ta'ala through His Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us, thoda do, magar consistent do. ये charity बहुत ऊंची है. Rather than give a lakh of rupees and then forget everything. Consistent charity over a period of months. Rahima Education Society, I really congratulate you for putting all these people together and doing something consistent. Who we are. When we talk about charity, I must congratulate, appreciate for this following the Sunnah, and friends, just like all the ayats that have been read in front of you, the reward for charity. You know, we give charity. अभी एक आयत पढ़ी गई आयत में वमा तुनफिकू फी सबीलिल्लाह वमा तुनफिकूना इल्ला बिब्तिगाअ वजहिल्लाह. आपने चैरिटी इसलिए की कि मुझे अल्लाह का चेहरा चाहिए. I need to see Allah's happiness for what I have done. खालिस खुलूस की बात आई, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैंने खालिस लिवजहिल्लाह ये काम किया. I mean, when somebody who does that with Allah subhanahu wa ta'ala, वो अल्लाह भी अल्लाह नहीं है अगर उसने उसको करोड़ में मल्टीप्लाई करके आपको ना दिया. एंड उस वक्त when you are most in need of it, वो कब नीड है हमको नहीं मालूम. और अल्लाह ताला उसी आयत में कहते हैं वमा तुनफिकूना ये कहते हैं लियुवफ़्फ़ा को, वापस मैं लौटाऊंगा आपको. ये पैसा कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम पर जुल्म हो जाए, तुम्हारा नुकसान हो जाए, तुम्हारा कोई बुरा हो जाए. That will never happen. It is this iman that propels this fantastic Muslim community. I have been part of my own medical friends, and I mean people who are not Muslim. I happened to go with them. I was in medical college with them 30 years ago, and I went on a trip last year for the very first time. And what did I notice? 30 years of medical school, of a top medical school, the average income was at least 5 lakh rupees a month. 5 lakh mahana salary है साहब. मगर चाय पिए तो मिलिट्री सिस्टम, लाओ जी 50 रुपए तुम्हारे 50, तुम्हारे 50, तुम्हारे 50. किसी का दिल नहीं है कि मैं सबको चाय पिलाऊंगा. और उस सिलसिले में मिल्लत इस्लामिया को हम देखेंगे, अरे क्या खूबी है, मैं दूंगा, पहले आप. लड़ाई होती है अगर हम चाय पीते हैं तो. यहाँ भी ऐसा ही होता होगा. अल्हम्दुलिल्लाह. I mean, this is how we conduct ourselves, and therefore this iman that Allah subhanahu wa ta'ala has given us, this hope that Allah subhanahu wa ta'ala has given us, that our charity, मैं आपको चाय पिलाऊंगा, अल्लाह ताला मुझे उसका अजर जरूर देगा. यही इस्लाम है, यही ईमान है. और एक आयत भी पढ़ी गई, यूतिल हिकमता मयशा वमन यूतिल हिकमता फक़द ऊतिया खैरन कसीरा. देखिए आजकल नॉलेज बहुत है. डॉक्टर्स को हकीम कहा जाता था. हिकमत बहुत कम हो गई है डॉक्टर्स में. नॉलेज है, हिकमत नहीं है. Which rule to apply when and to whom under what circumstances is something. और ये हिकमत वाली आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरे इंफाक की आयत के दरमियान डाला है. In all the ayat that encourage you to give, बीच में हिकमत की आयत डाली है. और हिकमत आती है जब आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करें. When you give out, when you have an empty stomach, शैतान डराता है, मगर अल्लाह ये कहता है कि देखो तुम तो, तुम्हें मुझे ऐसा अवार्ड दूंगा, ऐसे डॉक्टर बनाऊंगा कि तुम्हारी जो इंसाइट है, तुम्हारा जो डायग्नोसिस है, इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड. लोग नहीं दे सकते
मगर ये क्या बात है कि तुम देख सकते हो। That insight, that depth of knowledge people will get only when they have this quality of love and affection and sacrifice and giving to people, and that connect with people. I'm really impressed by what you people are doing. अल्लाह ताला आप लोगों को इस सिलसिले में मज़ीद तरक्की दे और let us join together in that. सूरह कहफ में एक स्टोरी है जिसमें खिज़र अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है ना, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जाते हैं, एक दीवार होती है, टूटी हुई दीवार, और बड़ा जालिम शहर होता है, और वहां टूटी हुई दीवार को ये दो लोग बना के देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अजीब आदमी हो, इतने गलत लोग हैं और इनके घर की बिल्डिंग बना के दे रहे हो आप फ्री में, पागल की गल हो गए हो। आई कांट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ नाइंसाफी। डॉक्टर्स भी कभी ऐसे होते हैं, समझ कम होती है। And therefore, finally when he tells why he did what he did, Khizr alayhi salam says, I did that because यहाँ एक ऑर्फन्स का ट्रेजर है, बिल्डिंग गिर जाएगी तो ट्रेजर बाहर निकल जाएगा, लोग चोरी कर देंगे। ये इंश्योरेंस था। उनका बाप नेक डॉक्टर था, जिसने दूसरों का ख्याल किया था, अल्लाह ने उसके बच्चों का ख्याल किया। बाद में चलकर देखिए कितने दिन मैं और आप जिएंगे नहीं मालूम, डॉक्टर हैं हम, बहुत कुछ समझते हैं। A lot of doctors that I know, cardiologists in the United States, अभी मैं लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, फेमस स्पीकर, क्या डॉक्टर शाहनवाज, there was a very famous speaker in the New York area and giving health advice to everybody, heart advice. And you know what happened? He was walking down in JFK in the airport, he fell and he died right there. He was about 47 years of age. डॉक्टर को खुद अपना नहीं मालूम होता है, हार्ट अटैक होता है कार्डियोलॉजिस्ट को। हम सबको केयरफुल रहना चाहिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा। सबसे बड़ा इंश्योरेंस यही है कि हम अल्लाह के रास्ते में वो पैसा अमानत के तौर पर देखें, and that is the safest place to keep that money, and I hope we all do that more and more and more. I actually had been to Bareilly probably last year in a similar function. Not exactly doctors, but the society together was giving scholarships to a lot of English, Urdu. All right, मैं बरेली गया था लास्ट ईयर। वहाँ एक बहुत मशहूर और मारूफ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के थे। I mean, an exceptionally great leader, an exceptionally great Muslim, but then suddenly died. Suddenly died. But that was 20 years ago, or many years ago. You know, when I went there, the most beautiful thing was to see his orphan children now. अरे क्या क्या बात है साहब, वो बच्चों पर जो उनके अंदर जो एहसास हुआ है, जिस तरह की पर्सनालिटी उनकी बनी है, अल्लाह ताला का खास फजल रहा है। वो बाप का असर था जो बच्चों में आया। क्या हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों में ये असर आए? See, a lot of us doctors have problems with our children. They are not listening to us. पेट भरे हो गए हैं, हम पढ़कर बड़े हो गए, बच्चे हमारे पढ़ नहीं रहे हैं। We have a lot of challenge, and then if you really want to think, वो एहसास बच्चों में अगर दिलाना है, तो let us become charitable, इंशाअल्लाह। और ये जो कल्चर है कि मुसलमानों का खास कल्चर है, and that culture is about पहले आप तुसरून अला अनफुसिकुम, यानी मेरी जरूरत बहुत है मगर मेरी तकलीफ जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी शदीद जरूरत है, मेरे बच्चे छोटे हैं, उनको बड़े होने के बाद फीस देना पड़ेगा, मगर आज जो तेरी हालत है ना, चल मैं तेरा पहले काम कर देता हूँ। मेरा काम कौन करेगा? अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर के लिए अल्लाह और रसूल बस। सिद्दीक़ अकबर के लिए, अरे बीवी बच्चों के लिए क्या छोड़ा है? मुझे अल्लाह और उसका रसूल काफी है। क्या क्या मुसलमानों की वो लीडरशिप है। I mean, this is something we all need to know, and
अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बताया कि शुह नफ्स एक चीज़ होती है, दिल की एक तंगी होती है, टाइटनेस होता है, और जिसको इससे बचा लिया गया, वमन युक़ शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। डॉक्टर कामयाब नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन कामयाब नहीं है, जिसके दिल से तंगी हटा दी गई, द स्मॉलनेस ऑफ द माइंड। एंड वो आयत जो अभी पढ़ी गई कि शैतान अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़ख्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान आपको डराता है फाखे से, कल के एंजाइटी से। सबसे बड़ा साइकेट्रिक प्रॉब्लम, कल क्या होगा, कल क्या होगा, अब उसके टेंशन से आज पूरे काम आज कर देते हैं। The anxiety of the tomorrow, the shaitan puts into you. मगर अल्लाह ताला आपको दिलासा दिलाता है। बता रहा था कि अल्लाह ताला सोच की और नफ्स की तंगी से हमको बचाए। उस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है। दुनिया में कामयाबी के बहुत से मेजर्स हैं। Many times as doctors we forget. I mean, सारे लोग खसारे में हैं, चाहे डॉक्टर्स हों, MBBS हो, BHMS हो, BOMS हो, DM हो, प्रोफेसर्स हो, except there is a certain thing. आखिरत में सूरह मुदस्सिर में एक डायलॉग जन्नत वाले और जहन्नम वालों के दरमियान से होता है, और बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि they were friends when they were living in Aurangabad together. They knew each other and they were all belonging to the medical fraternity. बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है। और कुछ लोग जन्नत में हैं, कुछ लोग दोज़ख में हैं, और जन्नत वाले दोज़ख वालों से पूछते हैं मा सलककुम फी सक़र, अरे आप तो प्रोफेसर थे, आप जन्नत में कैसा चले गए भाई, कैसा चले गए? मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकुन मिनल मुसल्लीन व लम नकुन नुतइमुल मिस्कीन। हम रहनुमा एजुकेशन सोसाइटी को पैसे नहीं देते थे, हम दूसरों का ख्याल नहीं करते थे, किसी की भूख लगी तो मुझे भूख नहीं लगती थी, मेरा पेट भरा हुआ था, मेरा सोच भी नहीं थी कि दूसरे लोग औरंगाबाद में जीते हैं, हिंदुस्तान में जीते हैं, जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता है, जिनके घर में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। I mean, I know a particular person, he earns $300,000 a year, which is like about 25 लाख माहाना कमाता है साहब, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडियन है, महीने को 25 लाख कमाता है, उसको एक बच्चा। Somebody asked him, how about a second kid? He said, I can't afford it. सोच की जो तंगी है, और मुसलमान माशाल्लाह 5 बच्चे, नो प्रॉब्लम्स, अल्लाह। ये जो लुकआउट है, होप है, उम्मीद है, इसको अप्रिशिएट कीजिए और इसको समझने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और जो कुछ ये अमल करेंगे, 50 रुपये का, 100 रुपये का, कुछ भी कभी भी ज़ाया नहीं होगा, ये हमारा ईमान है। दिस इज़ हू वी आर। बट फ्रेंड्स, जस्ट नाउ we were reminded about the Sachar committee report. Actually, if you want to go and search, there is a new study on the same Sachar committee. This thing, एक study group है which is called SPECT, SPECT. SPECT का एक report है, the same districts that the Muslim concentrated districts that Sachar studied in something like 2008. 15 years later, there is a follow-up study, and what has happened? डॉक्टर साहब के स्टाइल में, what has happened? Things have gotten worse. यार ऐसी हालत, अभी पठान साहब, डॉक्टर साहब बता रहे थे, see people who are on the field know how bad the situation is. असम के मुसलमान अपने बच्चियों को बेच रहे हैं 2-4 हज़ार रुपये में, they're selling them out, और हमारे पेट इस तरह भरे हुए हैं, हमें वो एहसास नहीं है। और ये सारी, मैं सख्ती के साथ कह रहा हूं, ये नमाज के ढोंग, ये हिजाब और दाढ़ी और टोपी के ढोंग, और ये जमातों के तालीमात और दुरूस और मीनिंगलेस
unless we work for the raising of those downtrodden people in this country. If we all don't participate in it, ये ढोंग होगा, ये दिखावा होगा, ये एक ऐसी मजहबियत है जो जानदार नहीं है, जो मीनिंगफुल नहीं है. We need to create a meaningful approach to our religion. If we don't, if our heart does not bleed for them, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ, तुमने देखा नहीं वो झुठलाने वालों को जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, कैसे हैं वो यही हैं जो यतीम को धुतकारते हैं. अभी बता रहे थे कोविड में कितने वो यतामा हो गए हैं. Who is taking care of them? अगर हमको अल्लाह ने बचा लिया, अरे मेरे दोस्त को चला गया वो, अब उसके बच्चों को कौन देखेगा? ये ख्याल अगर हमको ना आए, हम नमाजें पढ़ते रहें और रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ते रहें, ये कौन सा ईमान है? What kind of attitude is this? Why are we failing? Is it because of the central government we are failing, or is it because of our inaction, our insensitivity, our बेहिस्सी इस दुनिया के अंदर? वाकई इस पर हमको तवज्जो करने की ज़रूरत है और हमारे ईमान को जिंदा करने की ज़रूरत है. We are those people, अभी कहा मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, who believe that this wealth and everything that we have is not मैं नहीं हूँ, ये अल्लाह का महज उसका एहसान है, महज अल्लाह का एहसान है. क़द मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ताला ने हम पर एहसान कर दिया और ये मेरा कोई अचीवमेंट नहीं है. ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, बादशाह बन गए, कहा ये मेरा कोई अचीवमेंट नहीं है कि मैं इतना स्मार्ट हूँ कि ऐसे ऐसे ड्रीम्स को मैंने इंटरप्रेट कर दिया और यहाँ तक पहुँच गया. अरे बेवकूफ़, ये अल्लाह ताला का एहसान है. और एहसान का जज्बा जवाब क्या होना चाहिए? एहसान का जवाब क्या होना चाहिए? हम दूसरों पर एहसान करें, यही शुक्रगुजारी है और यही सही तरीका है. एंड वी आर दोज बिलीवर्स इन दैट आखिरा, नेकी करो नेकी पाओ, एंड दैट ब्यूटीफुल आखिरा. कुरान मजीद में एक सिनारियो है जिसमें असहाबे यमीन है और असहाबे शिमाल है, और बड़ा सा अर्श होगा, तराजू होगी और अमल नामा कहा जाएगा तुम पढ़ो, इक़रा किताबक, पढ़ो तुम्हारी किताब. बड़ा भयानक वक्त होगा और वो किताब में हर चीज लिखी हुई होगी. आप जो गुस्सा करें, आप जो एवरीथिंग दैट यू डिड, दिल के हालात भी उसके अंदर होंगे. आप कहेंगे कैसे जालिम किताब है, हर चीज डिटेल पूरा लिखा गया है इसके अंदर. और फिर कुछ लोग नसीबे वाले, वो अमल नामा सीधे हाथ में मिलेगा, इन द राइट हैंड. वो अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही. जैसा एग्जाम का रिजल्ट आ गया, अभी कहा नीट का मेरा बहुत अच्छा रैंक आया है, मुझे पीजीआई में सीट मिली है, बहुत खुशो खुर्रम है. जब वो सीधे हाथ में मिलेगा, जो डिस्क्रिप्शन है उस शख्स का जिसको सीधे हाथ में मिल जाए नामा, मेरी दुआ है, तमन्ना है कि हम सबको सीधे हाथ में मिल जाए. कहेगा फयक़ूलु हा उमुक़रउ किताबिया, देखो 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 मेरा किताब पढ़ो ना, I have got my result. He goes mad and she goes mad and runs with people and says मेरा किताब पढ़ो ना, मेरा रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गया. इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मैंने जो जिंदगी गुजारी, I was 100% sure that ये वक्त आएगा. And that is what guided me throughout my life, and that is why I was paying Rahnuma Society, because I knew that one day this judgment will come and Allah Ta'ala will give me the reward for this. और इस दिन का मुझे इंतजार था. ये जो खूबी है, I mean that success is that true success. वही फौज अजीम है, not this little thing that we have in life. सूरह फजर में छोटा सा सूरत है, लोगों के जहन की बात बताई गई. फ़अम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन. जिसको अल्लाह ताला ने 2 डिग्रियां दे दिया, 2 कार दे दिया, 2 गाड़ी दे दी, 1 बीवी या 2 बीवी, एक अच्छी बीवी दे दी और अच्छे बच्चे डॉक्टर बना दिए. फ़अम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु, उसे आजमाइश की उसने अल्लाह ने, ये सब देकर अक्ल भी दे दी बहुत जरूरी. कहा
रब्बी अक्रमन, अल्लाह ने मेरी बहुत इज्जत की। और बेचारे जिसको नहीं मिला वो बेवकूफ, दोनों बेवकूफ हैं। जिसने सोचा मेरी अल्लाह ने इज्जत कर दी, मुझे प्रोफेसर बना दिया, सर्जन बना दिया, व्हाटएवर, और दूसरे को कुछ नहीं, मैंने ऑटो ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर समझता है नहीं क्या साहब मैं तो छोटा आदमी हूं, अल्लाह ने मुझे जलील कर दिया और उसको इज्जत दे दी। कल्ला, नहीं, आपकी सोच गलत है। कल्ला, झूठ है ये सोच। जो अपने आप को बड़ा समझता है माल से, दौलत से, पैसे से, ओहदे से, डिग्री से, व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग इज दिस? कल्ला, नो, दिस इज नॉट इज्जत एंड दिस इज नॉट जिल्लत। बल ला तुकरिमून अल यतीम वला तुहाद्दून अला तुआमिल मिस्कीन। क्या बातें हैं। असल बात देखने की है कि 1000 रुपये कौन दे रहा है, 5000 कौन दे रहा है, 10,000 कौन दे रहा है, अपनी आमदनी का कौन सा हिस्सा दे रहा है और किस उम्र में दे रहा है, ये असल बात देखने की है। डीएम और एमडी और वो नहीं देखने की बात। आई मीन दिस इज व्हाट वी आर टॉट एंड दिस इज हाउ लाइफ इज। ऑलराइट, एनीवे, वी आर डॉक्टर्स एंड सॉरी राइट, हम डॉक्टर भी हैं और डॉक्टर होने के नाते अल्लाह ताला ने हमको बहुत दिया। वी आर द क्रीम ऑफ सोसाइटी, वी आर द इंटेलिजेंशिया ऑफ एनी सोसाइटी एंड गॉड हैज गिवन अस एजुकेशन। अल्लाह ताला ने हमें इल्म से नवाजा और डॉक्टर होने की वजह से एक खास तदब्बर, सोच, गौर, तफक्कुर, आई मीन समथिंग लाइक डीपनेस ऑफ थॉट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज गिवन मी। And therefore, these faculties, and the other beautiful thing as doctors is we are continuously seeing human suffering. इंसान जीते हैं, मरते हैं, खुशी, गम, सारे चीज़ों से हमारा सामना होता है। And therefore, we understand the reality of life and the frailty of life. कितनी unpredictable है। मेरा दोस्त, अभी मैं बता रहा हूँ, हमारे मस्जिद के एक साहब, वेरी फिट एंड फाइन अंटिल बकरीद होके कितने दिन हो गए भाई, अभी तो हुआ, 1 महीना भी नहीं गुजरा है। एंड टुडे ही इज रिदिंग इन पेन विद अ मेटास्टेटिक लिवर कैंसर, स्टेज 4 कैंसर। अभी इतने दिन तक आई एम टेलिंग यू, अल्लाह रहम फरमाए साहब। लोग ऐसे एटीट्यूड्स रखते हैं, छोटों पर ऐसा जुल्म करते हैं, उनको मालूम नहीं कि एक दिन में बदल जाएगा। ऐसा तड़प रहे दर्द से, अल्लाह उनको आसानी दे, अल्लाह उनको दर्द से दूर दे, कोताहियों को माफ फरमाए। But what I'm saying is, when you come across these things, man becomes humble. उसकी चाल में जरी नरमी आ जाती है, गुफ्तार में थोड़ी सी क़ुलू लिन्नासी हुस्न। डॉक्टर ऐसे बात करना, ये कोई चैरिटी नहीं है, ये कोई चैरिटी नहीं है। इसीलिए खुदा ने कहा क़ौलुम मारूफुन, अच्छे बात सबसे बड़ा सदका है, आपके 1000 रुपये से बढ़कर है कि आप लोगों से अच्छी बात करो, लोगों के गुनाहों को माफ करो। डॉक्टर बन के हर चीज को और नर्स पर और जूनियर्स पर चिल्लाते नहीं है। बी काइंड, हम भी ऐसे गलतियां किए थे उस जमाने में। बहुत बड़ी चैरिटी है ये अखलाक, और इससे जो इंप्रेशन लोगों पर पड़ता है, आपसे करीब हो जाएंगे। डॉक्टर्स विल बिकम मर्जे खलाइक, पीपल विल आई मीन सराउंड यू। वो पुराना जमाना होता था, I'm forgetting the name, Johns Hopkins का senior physician who wrote a lot of books, the essential books of internal medicine, Dr. I'm forgetting. Anyway, वो शख्स क्या था, हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री पर भी बहुत लिखा उसने, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन की था। No. Johns Hopkins University का, I mean, he's about 100 years ago, was surviving even 50 years ago. Anyway, ऐसा लोग उनको चाहते थे। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चलते थे तो 50 लोग उनके साथ चलते, मोहब्बत उतनी होती थी उनकी। They used to love their leader because they were not
always shouting, always that. No, they were very kind, very merciful, very charitable in our attitude. Attitude में charity develop करना डॉक्टर्स के लिए इस वक्त बड़ी अहम ज़रूरत है। दोस्तों, हमारी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ये एक ऐसी कम्युनिटी है, गरीब, लाचार, politically ostracized, marginalized. अब हम उस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और हमको ब्रिजेस बिल्ड करना है इस देशवासियों के साथ थ्रू द टूल्स दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज गिवन अस। एहसान कीजिए लोगों पर एहसान कीजिए। परेशान है दुनिया मुसलमानों की भी और गैर मुस्लिमों की भी। If we can do some ihsan on non-Muslims, and ihsan can be as little as talking nicely to them. Please come, बैठें। People have a great attitude. I'm telling you, just simple good behavior, akhlaq, can really change the dynamics of this society that we live in. Our responsibility is to showcase Islamic values, showcase what the Prophet ﷺ was all about. And our responsibility is अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, मारूफ का हुक्म लगाएं और मुनकरात से रोकें। और हम रहमतुल लिल आलमीन के फॉलोअर्स हैं। रहम का जज्बा हमारे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ हो और हमारे पेशेंट्स उसको देखें और कहें, डॉक्टर साहब आप तो ज़रा अलग हैं, बाकी लोग अलग हैं, क्या बात है। He will ask you questions. They will ask you questions. It is a great dawah opportunity, a great opportunity to tell who the Prophet was. Twitter पे wars नहीं लड़ते हैं, WhatsApp पे wars नहीं लड़ते हैं, wars लड़ते हैं तो क्लिनिक के रूम में लड़ते हैं और इतने ब्यूटीफुल तरीके से लड़ते हैं। मुसलमान का डॉक्टर मुजाहिद है इस सिलसिले में और उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने रखी है। और ये बात कि हम उखरिजत लिन्नास हैं, सारे इंसानियत के लिए पैगाम है। हमारा देश इस वक्त इंटरेस्ट ग्रुप्स के टुकड़े 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 हो गए हैं। ये मेरा इंटरेस्ट, वो तेरा इंटरेस्ट। और इससे आप देखते हैं कि जो मणिपुर की हालत हुई है, कोई इंसाफ देने वाला नहीं है। इतने शेमलेस एक्ट्स हैं, बट ये जो डिविजन्स हैं, उन डिविजन्स को उबूर कर, jumping above them and giving justice to this world, that is what Islam was. सूरह निसा में एक आयत है चैप्टर 4 135 में, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ। किसके लिए खड़े हो? इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ। Even if it goes against your own selves, if it goes against your father, if it goes against your mother, if it goes against your relatives and friends, if it goes against your community, if it goes against the poor man or the rich man, stand up for justice. ये तुम्हारा काम था दुनिया के अंदर, तुमने छोड़ दिया। अब वो आयत कहाँ लिखी हुई है मालूम है? Anybody? You know where this ayat is written? In the Harvard Law School. In the portals of the Harvard Law School, this ayat is written. It is an earth-shaking ayat, I mean a revolutionary ayat. मगर मुसलमान हैं, हमको anatomy physiology आता है, कुरान कहाँ आता है? I mean it's time that we went back to the root source of all knowledge and wisdom, and that is the Quran. अब कुछ तो इंतजाम कीजिए, रहनुमा करने के लिए खुद को भी रहनुमाई चाहिए, और वो किताब कुरान के अलावा और कुछ नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि हम एज डॉक्टर्स वी बिकम readers of the Quran, followers of the Quran, understanding the Quran, spreading the Quran, because there is no book as intellectual, as touching the heart as the Quran is all about. ये जो हालात हम दुनिया में देखते हैं, गुर्बत ही है, देख लीजिए। एक्चुअली मौलाना मदनी wrote a very interesting thing, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि एक सोसाइटी है साहब बेंगलोर में, गार्बेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। म्यूनसिपालिटी के लिए गार्बेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गार्बेज फेंकना कहाँ चाहिए? वेयर डू यू थ्रो गार्बेज? अब वो ट्रक्स ले जाकर कहीं डंप करते हैं, एक डंप होता है, डंप यार्ड में फेंकते हैं, और वहाँ के जो विलेजर्स होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास क्यों आकर डंप करेंगे आप? बहरहाल देयर इज लॉट ऑफ जंक इन ट्रक्स दैट इज ब्रॉट एंड डंप्ड। और हमारे रहनुमा सोसाइटी के बहुत नेक, प्यारे, अच्छे दिल वाले, रहमदिल लोग
हाथों से थोड़ा थोड़ा करके वो गंदगी साफ कर रहे हैं। गंदगी, हजार हजार रुपये की गंदगी साफ कर, करोड़ों का जुल्म किसी ने किया है। और अक्लमंदी यही है कि जब हम ये भी करें, उस सोर्स को बंद करें। Why is poverty being created in this world? We should ask that question. इसका क्रिएटर कौन है? इसको समझने की कोशिश कीजिए। Rise above this and understand that this poverty is not natural. It is being created by somebody, and we all should join, raise our voice, and stop this dumping of trucks and dumping of charity on us. Our nation is not a poor nation. There's a lot to learn from that. Friends, बोलने के लिए बहुत सारे बातें हैं, मगर डॉक्टर्स के सामने जब एक प्रॉब्लम आता है, दो किस्म के डॉक्टर्स हैं। आजकल मेडिकल प्रैक्टिस भी बहुत इजी कर दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने। डायरिया होता है किसी को तो गोली का नाम है स्टॉप इट। सोचने की क्या जरूरत है साहब, आपको डायरिया हुआ, गोली, सीरियसली आई एम नॉट मेकिंग दिस एज अ जोक, गोली का नाम क्या? स्टॉप इट। आप भी डॉक्टर बन गए। किसी को कब्ज हो जाता है तो गोली का नाम क्या? लूज। पाइल्स होती है शिकायत, पाइलेक्स। खांसी होती है कॉफलेट। यानी सोचो मत यार कि खांसी क्यों हो रही है, उसको कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, कहीं कैंसर तो ना हो, कहीं कोलन कैंसर तो ना हो, डायरिया क्यों हो रहा है, कहीं लिम्फोमा तो ना हो। सोच, going to the root cause. Why are people poor? Why are they not able to give scholarships? Why is the government not paying scholarships to them? Why is it that I should pay? Why can't somebody else do it? What is the problem with human beings? और इस सिलसिले में कार्डियोलॉजिस्ट तो यहाँ है, मगर सच्ची कार्डियोलॉजिस्ट कुरान मजीद है। वो अमराज क़ल्ब की बात करता है। And that is really, really beautiful when you know that primarily these things are because we have forgotten Allah subhanahu wa ta'ala. We forgotten where we came from. एक बहुत अच्छी बात मैंने 2 दिन पहले पढ़ी। इंसान जो अकड़ता है उसको देखकर एक आदमी ने कमेंट किया है, it is so fascinating to see the arrogance of a being who has come out of the urinary tract 2 times. पेशाब के रास्ते से निकली हुई चीज है ये पूरी, इतनी हकीर चीज है, 2 बार निकला है, फिर भी कितने बातें करता है, क्या चलता है, क्या करता है, क्या कॉन्फिडेंस है इसका। कुरान ने कहा फला तुज़क्कू अनफुसकुम, आपकी बड़ाई, यहाँ क्या क्या की बोलते हैं ना साहब, फला ऐसे हैं वो है, नेवर टेल, अपनी बड़ाई मत बयान करो। अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुझको तब से जानता हूँ जब एक जर्म था पेट के अंदर और यू आर हेल्पलेस, उस वक्त से मैं तुझको जानता हूँ, तेरी बड़ाई मेरे सामने मत कर। लूज योर एरोगेंस, अंडरस्टैंड ह्यूमिलिटी एंड गेट टू नो दैट। दोस्तों, इन हालात का ट्रीटमेंट यही है कि हम खुदा को याद करने वाले, पढ़ने वाले, अच्छी कंपनी और अच्छी दोस्ती, ये माहौल कितना अच्छा है। जमे, महीने में एक बार जमे, कुछ नेक बातें सुन लो, याद दहानी करा लो, तब हम रहनुमाई के काबिल भी हो सकते हैं। अच्छे दोस्त, अच्छे कंपनी। और डॉक्टर्स का एक प्रॉब्लम है, वो बहुत बिजी लोग हैं, और बिजी का जो BUSY का फुल फॉर्म लोग बताते हैं, इट्स कॉल्ड बीइंग अंडर, बीइंग अंडर शैतान्स योक। योक कहते हैं वो जो लकड़ी का कुंदा होता है, गाय पर डालते हैं, जब बुलक कार्ट का जो कुंदा होता है, और गाय पर डाल देते हैं तो उसको और कोई ख्याल नहीं होता है, वो चलती चली जाती है, वो बैलगाड़ी जैसा। अब वो जब हमारा वो कुंदा हमारे गलों पर, गर्दनों पर पड़ता है शैतान का, फिर हम इतने बिजी, ना नमाज के लिए, ना कुरान के लिए, ना एक तहज्जुद के लिए, ना एक जिक्र के लिए, ना एक दुआ के लिए, ना किसी के काम आने के। माँ बाप, बल्कि बीवी का सबसे बड़ा कंप्लेंट यही है, सारी दुनिया को देखते हो, मुझे नहीं देखते। क्यों भाई डॉक्टर्स, अब हाथ उठाओ, कौन कौन देखता है? ट्रू और फॉल्स?
absolute truth. And therefore, al-hakumut takasur, कब तक ये दौड़ में more and more and more? Kalla, you would never do this if you know where you are going to go. अगर वहाँ जाना है तो ये, why are you doing this? Take some time off for your parents, for your wife and children, for your own mental stability. Karak sahab, one of the reasons for mental adolescent health की बात करें, doctors health की बात करना चाहिए. Doctors के mental health की. और doctors का mental health का एक problem ये है, अपने लिए टाइम नहीं, वक्त नहीं निकालते हैं, हमेशा गिनते ये पेशेंट वो पेशेंट, ये पेशेंट वो पेशेंट, यहाँ से कॉल वहाँ से कॉल, फोन भी बिजी वो भी बिजी बोले तो क्या, बीइंग अंडर शैतान योग. So let us get a little free time, and that we will get some kind of goal. बहरहाल मुझे कहने बहुत वक्त नहीं है. There are a lot of action points that I was wanting to share with you, but let us search for cheap, easy cures. कैंसर ट्रीटमेंट की बात कर रहा था, नौजवान आ रहे थे, साहब आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं, 2.5 करोड़ का ट्रीटमेंट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कार टी थेरेपी, कार्ड, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ इंजेक्शन पीपल आर मेकिंग. 1 मिलियन का एक इंजेक्शन, 2 मिलियन का एक इंजेक्शन, $2 मिलियन, 16 करोड़ का एक इंजेक्शन. कितना? 16 करोड़ का एक इंजेक्शन साहब. One injection, 16 crores, and the fellow says, 5 करके मैं 16 crores को दे रहा हूँ, वरना असल में 50 करोड़ का था, यानी एहसान भी कर रहा है. एक इंजेक्शन, unaffordable, can't do this. लोग मजबूर हैं. अगर हमारा दिल ये तड़पे ना, and search for cures, search for alternatives, ask, question the wisdom of prevailing rules and guidelines, create that. सिफला के अब्दुल हमीद साहब क्या काम करे साहब, पूरे अफ्रीका का एड्स का प्रॉब्लम खत्म कर दिया एक मुसलमान शख्स ने. आपको मालूम होना चाहिए, चैलेंज लिया उन्होंने. Otherwise people in Africa would be dying by the dozens with HIV. I mean, that man deserves a Nobel Prize actually, and he hasn't been given. Shame on that Western world for not doing that. कैसे लोग जो दुनिया में गुजरे हैं. जोनास साक एक आदमी था, Jonas Salk. What's it? Polio vaccine. Which polio? Oral polio. Oral polio vaccine उसने बनाई. अगर उसने पेटेंट करता तो करोड़पति हो जाता, मगर उसने कहा अरे इंसानियत को पेटेंट कैसे करेंगे, ये तो बच्चों के लिए है, उनके पोलियो से बचने के लिए है. मैं हरगिज ये पोलियो मैं पेटेंट नहीं करूंगा. और कौन था मालूम? यहूदी था. और वो एहसान क्या इंसानियत पर, जो ओरल पोलियो ड्रॉप्स डालकर पूरा नेशन वाइड हम ये करते हैं. किसने बनाया? Why can't we be a Muslim? Why can't we dedicate ourselves to that, solving problems of humanity? Rather, I mean, मैं ये कह रहा हूँ कि when giving scholarships is something fantastic, will take us to Jannah, why don't we think bigger? सोच, मैं उस सबके लिए, इस्लाम सबके लिए, रहमत लिल आलमीन, everybody. And we need to lastly, I mean, the kind of potential you have here in Aurangabad, you can start a medical college here, let alone a hospital. I request doctors to give, यार इतने सर्जरी करते हैं, महीने में 2 फ्री करो, महीने में 2 फ्री करो. क्या डॉक्टर साहब, 2 कैटरेक्ट फ्री करो यार. 15 मिनट लगते यार, 25 मिनट लगते. 2 डिलीवरी फ्री करो भाई, 2 डिलीवरी फ्री करो ना. अल्लाह ताला बरकत देगा. He will give more. There's lots to give. यानी it's much easier to give that 1,000 rupees than to give a portion of your time and your intellect. And lastly, working together requires certain rules and discipline. Learn teamwork. हमारे अंदर वो teamwork नहीं है. Sharing of work and teamwork to do complex functions. I mean, organizing something like this is not a complex function. Running a hospital is a complex function. I really congratulate Dr. Faisal for running Icon Hospital with so many doctors together. And that is a skill of keeping people together. मुसलमान की वो रोल होना चाहिए, वो शेपर्ड है.
सारे बकरियों को और सबको साथ रखता है। And that leadership we should learn so that we can contribute much more to this nation and to everybody around. शंकर नेत्रालय, ऐसे कैसे चीज़ें हैं, सब मुसलमानों का क्यों नहीं है? शंकर के नाम पर वो लोग कर सकते हैं, क्रिश्चियन मेडिकल हॉस्पिटल के नाम पर वो कर सकते हैं। क्या हमें गीरत नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं अल्लाह के नाम पर और नबी के नाम पर? And this is something we need to deeply think about. Finally, gentlemen, let us dream. Let us unite. कि देखिए, काम सिर्फ इतना नहीं है, कोई आदमी मेडिकल चैरिटी करता है, कोई स्कॉलरशिप की चैरिटी करता है, पर काम बहुत बड़ा है और हम सब मिले, और ये जमात, वो जमात, ये ग्रुप, वो ग्रुप, सेल्फी ग्रुप, whatever groups, we have a certain direction to go in. We have a common minimum agenda. We hold our hands and work together and move forward as a society, because a lot of things depend on us Muslims. All those lynchings, all those women of the Manipur who are screaming, उनकी आवाज़, एक कुरान की आयत है साहब, सूरह निसा में, प्लीज नंबर 75 है, वमा लकुम, what is the matter with you? डॉक्टरों से कहा जाता है, वमा लकुम ला तुक़ातिलून फी सबीलिल्लाह वल्मुस्तदअफीन मिनर रिजाल वन्निसाई वल्बिल्दानिल लज़ीना यक़ूलून रब्बना आतिना, सबको आता है, ये दुआ सुनिए, रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमिन अहलुहा, ऐ अल्लाह इस शहर से हमको बचा ले जिसके गवर्नर्स जालिम हैं, ज़ालिमी अहलुहा, वजअल लना मिन लदुनका वलिय्या वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, ऐ अल्लाह किसी डॉक्टर को भेज जो मेरे पेट के दर्द का इलाज करे, जो मेरी तकलीफ का ख्याल करे, जो मेरी मदद करे, मेरा दोस्त बने, किसी को तो भेज। अल्लाह ने किसको भेजा इस दुआ के जवाब में? मुसलमानों को भेजा। वो औरतों की चिल्ला है, और फीमेल फीटिसाइड रनिंग है रेडियोलॉजी सेंटर, फीमेल फीटिसाइड औरतें नहीं हैं हरियाणा में, पंजाब में, देयर आर नो विमेन, दे आर बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम असम, एंड वन वुमन गोज टू by the age she comes at 18, and by the time she is 29 she has had 10 husbands and 9 children. क्या मजाक है? औरतों की हालत किसने किया? डॉक्टर ने किया, रेडियोलॉजिस्ट ने किया, गायनेकोलॉजिस्ट ने किया, हॉस्पिटल ओनर्स ने किया। इन आंखों को बंद करके हम जीते नहीं हैं, ये हमारे बहुत बड़े जिम्मेदारियां हैं और बड़ा काम है। Let us all work together, dream of peace, dream of a beautiful world, dream of a health for all, which was only a slogan of WHO by 2000, वो होकर 25 साल हो गए और कोई health for all नहीं आया। ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। I congratulate you people, very very proud residents of Aurangabad. We have a great man close by, आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का शहर है, और मुझे बड़ी खुशी है। I have traveled across many places in India and I speak to a lot of doctors. Bangalore has a great doctor community too. I welcome you to come to Bangalore and see what is happening there. Aurangabad is a great share, and let us do some twinning of Aurangabad and Bangalore, A and B, and then C will be Chennai. Inshallah, we will see a great society. Thank you very much for inviting me. Assalamu alaikum.